Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammed Dawar Zahid and welcome to another video in which I believe this is the part 3 of rapid review of hormones. I know कि ये रैपिड रिव्यू सीरीज़ है तो मैं वीडियोस को जितना छोटा कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ लेकिन जस्ट के दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट हाई यील्ड चैप्टर सो आई वांटेड टू गो इनटू एज मच डिटेल as I could afford to go into. Anyways, in today's video, I'll be talking about some hormones of pancreas that we are left with, your sexual reproduction hormones, और उसके साथ साथ हमने इंसुलिन और ग्लूकागॉन को डिस्कस थोड़ा सा किया था, but I want to talk about their feedback loop and stuff. And then uske baad finally we will be talking about tumors in regards to glands. If let's say there is a tumor proximal to a gland, what effect does that have on the gland's activity? If there is a tumor distal to the gland, how does that affect the gland's activity? And finally, if there is a tumor on the gland, okay, how does that affect uski working? Okay, so it'll be a fun class, and now let's just get started. Alright guys, so just giving you all a quick recap कि हमारे पास beta cells होते हैं and these are going to be producing insulin, ठीक है, और हमारे पास alpha cells होते हैं जो कि हमारे पास glucagon करते हैं, but this is the same thing that we have in A levels, ठीक है, लेकिन just कि this is highly tested, तो I just want to quickly go over insulin and glucagon. Insulin कब produce होती है? This is produced when आपके पास बॉडी में टू मच शुगर, टू मच ग्लूकोज ब्लड में ना, देयर इज टू मच ग्लूकोज के लगता है आपने खाना खाया है और अब वो द ग्लूकोज हैज बीन टेकन इनसाइड योर बॉडी एंड नाउ देयर इज टू मच ग्लूकोज इन योर बॉडी. ग्लूकागॉन कब होती है? व्हेन देयर इज टू लिटिल ग्लूकोज, ठीक है, कि योर बॉडी इज लेट्स से यू आर फास्टिंग, ठीक है, सो देन ग्लूकागॉन इज बीइंग रिलीज्ड, ठीक है. what is the actions of these hormones, ठीक है. so actions में जो इंसुलिन होती है, what insulin does is कि इंसुलिन attempts to reduce blood glucose levels, ठीक है. so ये कोशिश करती है कि मैं blood glucose levels को reduce कर दूँ, और जो ग्लूकागॉन है वो कोशिश करती है कि मैं blood glucose levels को increase कर दूँ. and in a nutshell this is how they work. तो what insulin does is कि इंसुलिन लेट्स से आपका रिसेप्टर टेक करवाना शुरू कर देगी, ठीक है, आपके ग्लूकोज को आपके बॉडी से, आपके ब्लड से सॉरी, आपके मसल्स और आपके लिवर में शिफ्ट करना शुरू कर देगी. दिस इज सॉर्ट ऑफ द थिंग्स दैट इट स्टार्ट्स टू डू, ठीक है. ग्लूकागॉन डज द ऑपोजिट एंड आई वुड जस्ट सजेस्ट प्लीज गो ओवर योर ए लेवल्स और योर एफएससी नोट्स, ठीक है. तो एज अ रैपिड रिव्यू दिस इज सफिशिएंट बट स्टिल जस्ट गो ओवर देम वंस, ठीक है. ये आप लोगों की चीज़ें याद, मुझे तो मतलब आज तक याद है, ए लेवल्स में पढ़ी थी अभी भी याद है, ठीक है, बिकॉज इट्स समथिंग दैट्स रियली बेसिक, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल विद इट. बट खैर लेट्स से समवन हैज डज नॉट हैव इंसुलिन इन देयर बॉडी, तो उनके साथ क्या मसला होगा कि दे विल हैव टू मच ग्लूकोज इन देयर क्या कहते हैं ब्लड, बट दैट ग्लूकोज विल बी अनेबल टू एंटर देयर tissues, their muscles, their brain and stuff. But खैर that's a different story. But just know कि डायबिटीज़ कब होती है? जब हमारे पास इन दोनों हार्मोन्स में मसला हुआ, और इन दोनों हार्मोन्स का एक हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो जाए, if there is a hormonal imbalance of these two hormones, then we are going to be having diabetes. That's it. Okay, as a rapid review, that's all that we need to know. Okay, now guys, we are just left with three hormones that I would like to discuss. ठीक है, initially मैं नहीं सोच रहा था लेकिन अब I think I should talk about these, ठीक है. So these three hormones are going to be somatostatin, pancreatic polypeptide and glycine. Especially glycine is super high yield to know about, ठीक है. So हमारे पास let's start off with somatostatin. Somatostatin क्या करती है? Somatostatin आपके somatostatin. Okay, so what somatostatin does is it inhibits the release of gastrointestinal tract hormones. So they can ask you which of the following has an inhibitory role in the hormonal system of the gastrointestinal tract, ठीक है. So somatostatin is inhibitory in nature, ठीक है. Okay, so उसके बाद हमारे पास आ जाता है pancreatic polypeptide, ठीक है. So what does pancreatic polypeptide do? Pancreatic polypeptide हमारे पास एक सेल्फ रेगुलेशन के तौर पर एक्ट करता है, और ये pancreatic
सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है. सो आवर पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस आर गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय आवर पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. दैट्स ऑल. एंड ऑल्सो one more thing that it does is, again, this is one of those things के इस टाइम पे सिर्फ रट्टा मारो. if you were with me since the start, I would have explained it from scratch, but अब हमारे पास obviously टाइम नहीं है. जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होता है this also affects your hepatic glycogen levels. ग्लाइकोजन क्या होती है? ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स / humans. ठीक है. so this is what happens. okay. So the last one that I want to talk about now, ये सारे हम पेनक्रियास के हार्मोन्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. if it's not obvious to you. so guys, we have glycine. and what is glycine? Glycine acts as a neurotransmitter. acts as one. okay, that's the emphasis. और हमारे पास ना इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि अगर हमारे पास ग्लाइसिन डेफिशिएंसी हो तो दैट हैज़ बीन लिंक्ड विद, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़. हाउ? आई वुड वांट टू एक्सप्लेन इट यू गाइस अ बिट कि हमारे पास ना ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी की वजह से इंसुलिन रिसेप्टर, क्या बताऊँ यार, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वे कि जिन लोगों में डायबिटीज़ नहीं होती, उनके पास ग्लाइसिन होती है, उनके अंदर इंसुलिन रिसेप्टर्स इंक्रीज हो रहे होते हैं. इन सिंपल टर्म्स, इट इज़ मेकिंग यू मोर सेंसिटिव टू इंसुलिन एंड दैट इज़ अ गुड थिंग. दिस इज मी टॉकिंग अबाउट मोर सेंसिटिव टू इंसुलिन. दिस इज मी टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल थिंग. ठीक है, कि दिस इज हाउ इट नॉर्मली इज. दिस इज हाउ इट नॉर्मली इज. कि अगर आपके पास ग्लाइसिन के लेवल्स हों बॉडी में तो इंसुलिन रिसेप्टर्स इंक्रीज होते हैं एंड वी से कि यू आर मोर सेंसिटिव टू इंसुलिन एंड दैट सॉर्ट ऑफ इज एंटागनिस्ट टू डायबिटीज़. ठीक है, दैट इट्स लाइक उल्टा होता है डायबिटीज़ का. ठीक है. तो चलो, अब हम लोगों ने ये बात कर ली. वी टॉक्ड अबाउट ऑल द पेनक्रियाटिक हार्मोन्स. ठीक है. नाउ गाइज, लेट्स टॉक अबाउट आवर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स. ठीक है. सो इन हार्मोन्स का क्या सारा सिस्टम होता है, कैसे काम कर रहे होते हैं, ऑल दोज थिंग्स आई विल बी टॉकिंग टू यू गाइज इन द वीडियोज़ फॉर दैट. बट यहाँ पे मैंने क्या बात करनी है, मैंने सिर्फ एक हार्मोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है. सो गाइज, हमारे पास सबसे पहले भी है एस्ट्रोजन. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज एस्ट्रोजन, वेयर इज इट सिक्रीटेड फ्रॉम? ये दो जगहों से सिक्रीट हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलिकल्स से व्हेन दे आर राइपनिंग, एंड सेकंड ऑफ ऑल आपके जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ओवरीज के. ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स. ठीक है. अच्छा, एंड the next thing that I want you to know is that we have 3 types of estrogen. ठीक है. There's going to be estrone, there's going to be estriol, and lastly there is going to be estradiol. ठीक है, ये 3 हमारे पास किस्में आती हैं. अच्छा, estrogen के levels are going to be primarily controlled by FSH, follicle stimulating hormones, because वो follicles stimulate करेगी और फिर follicles आगे से estrogen produce करेंगे. ठीक है. Specifically important for maintenance of pregnancy. और अगर हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी प्लस आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें इन्वॉल्व होता है. ठीक है. सो दिस इज एस्ट्रोजन. नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्रोजेस्टेरॉन. सो प्रोजेस्टेरॉन इज स्पेसिफिकली गोइंग टू बी सिक्रीटेड बाय अ रप्चर्ड फॉलिकल. ठीक है. रप्चर्ड फॉलिकल सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. और इसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करवा होता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको इसकी सिक्रीशंस करवा रहा होता है. एंड ऑल्सो प्रोजेस्टेरॉन इन इटसेल्फ इज गोइंग टू गो एंड इट इज गोइंग टू इनहिबिट योर FSH. ठीक है. अच्छा, मैंने कहा ना इसके जो सारे साइकिल्स हैं वो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिस्कस करेंगे. अभी आई जस्ट वांट यू गाइस टू नो छोटी छोटी तरह की चीज़ें. अच्छा, और जस्ट वन लास्ट थिंग, प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन जो आपका मेमोरी ग्लैंड होता है. ठीक है. मेमोरी ग्लैंड्स को ये उनकी सिक्रीशंस को रेगुलेट करवा रहा होता है, उनको प्रमोट करवा रहा होता है. ठीक है. सो
So I guess that's all the detail that I'm going to go into for progesterone. ठीक है अच्छा. Now guys, I want to talk about something that's super high yield, and that is PCOS. PCOS stands for polycystic ovarian syndrome. ठीक है. So हमारे पास होता क्या है कि we are basically going to be having these really small collections of fluid. ठीक है कि follicles छोटे छोटे ने जिसे हम cysts कहते हैं कि small cysts which are fluid filled, ठीक है, will develop fluid filled small cysts जो कि आपकी ovaries में फैल जाते हैं. ठीक है. And what happens as a result of this is कि हमारे पास we have a failure to ovulate, which means कि you can't release eggs, जो कि फिर eventually it basically means कि you are going to become infertile. ठीक है. इसके बाद आपकी menstrual period जो होता है it can become infrequent. ठीक है कि कई अरसे आएगा ही नहीं. It can become prolonged कि okay it's literally there for like weeks. ठीक है. And you can also have something called heavy bleeding. ठीक है. इसका क्या एग्जैक्ट नाम होता था जैन से निकला है menorrhagia. Yes, I would want you guys to keep this word in mind. Menorrhagia basically means very heavy bleeding. ठीक है. So and इसके साथ साथ सबसे जो important हमारे पास चीज़ होती है that is going to be a hormonal imbalance. ठीक है. So guys, hormones are very carefully in balance with each other. आप एक के लेवल्स को ख़राब करते हो, आप पूरे सिस्टम को ख़राब कर देते हो. ठीक है. So हमारे पास PCOS में we have hormonal imbalance, जिसकी वजह से we can have a lot of different things. We can have stuff like premenstrual dysphoria. ठीक है. Premenstrual dysphoria syndrome कहते हैं उसको. ठीक है. And importantly for your syllabus we can have excessive male hormones, and because of these excessive male hormones you can have stuff like for example women having hair on their face, hirsutism हो सकता है. ठीक है. So but khair, that's a different conversation from your exam point of view. This is all that is important. Okay guys, अच्छा, so now basically let's talk to you guys about testosterone. ठीक है. Let's just go here. यहाँ पे हम testosterone start कर लेते हैं. ठीक है. So talking about testosterone and the role of testosterone, सबसे पहले testosterone की जो हमारे पास exact अगर मैं chemical composition की sort of a chemical नाम की बात करूँ that you should be aware of, it's the same thing, that is 17B hydroxytestosterone. ठीक है. ये दोनों सेम बातें हैं हमारे लेवल पे. ठीक है. 17B hydroxytestosterone at your level both of these things are the same. ठीक है. So treat them as such. टेस्टोस्टेरोन कौन रिड्यूस करवाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को आप ऑल्टरनेटिवली इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कह सकते हो. ठीक है. अच्छा, हमारे पास व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट फॉर? इट इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड इन योर फीटल लाइफ. ठीक है. और वहाँ पे ये आपके सेक्स ऑर्गन्स बनवाता है, एंड देन लेटर ऑन, बचपन में नहीं होगा लेकिन लेटर ऑन आपके जो प्यूबर्टी का टाइम होता है उसमें इट किक्स इन. ओके. A couple of things that it does that are notable to know is कि first of all it increases the secretions of the sebaceous glands. ठीक है. जो आपके मुंह पे sebaceous glands होते हैं उनके secretions testosterone increase करवा देता है, which is why in teenagers you have a lot of acne because sebaceous glands ज़्यादा secrete कर रहे होते हैं, मुंह पे oil ज़्यादा होता है, वैसे भी मुंह नहीं धोते बच्चे. ठीक है. तो वो मसला होता है. Similarly, if you want to sort of spot a bodybuilder who takes steroids, so they'll have really bad acne. Most of them will have really bad acne. So that is a sign of taking testosterone. ठीक है कि वो anabolic steroids वगैरह ले रहे होते हैं. Anyways, it increases metabolic activity. तो जो आपका basal metabolic rate होता है उसको बढ़ा देता है. ठीक है. Increases metabolic activity and it increases your bone thickness. And one important thing which can come into a question वो ये है कि हमारे पास ना टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि it increases your red blood cell count.
ठीक है, एंड ऑल्सो लाइक बिकॉज रेड ब्लड सेल काउंट को इंक्रीज करवाता है तो हीमोग्लोबिन भी ऑब्वियसली इंक्रीज करवा रहा होता है, ठीक है. सो व्हाट इज़ द नेट इफेक्ट ऑफ दिस, ठीक है. द नेट इफेक्ट ऑफ दिस इज कि दिस इज द रीज़न वाई men are less likely to develop anemia. On the other hand, for women, given the fact that they also have, you know, menstrual periods and stuff, ठीक है, so they're already bleeding once a month, ठीक है, तो and they don't have any testosterone, they're sort of placed at a disadvantage, ठीक है. So that is basically it, ठीक है. So guys, इसके साथ साथ बस एक लास्ट चीज़ थी कि ऑक्सीटोसिन का जो फीडबैक लूप है, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आई डिड दैट वंस बट इट वाज सो इम्पॉर्टेंट, यू नो, एट द एंड ऑफ माय नोट्स आई हैव रिटन इट अगेन कि रिवाइज ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव फीडबैक लूप. तो प्लीज़ कीप दैट थिंग इन माइंड. एंड नाउ गाइज लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आवर कैंसर्स. Okay guys, so let's talk about cancers in regards to our tumors, ठीक है. So my students who have been with me since September, ठीक है, उनको तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी के लिए I'm only going to be doing 3 cases, ठीक है, actually sort of 4 cases, ठीक है, which are the most high yield और आपको these should be on your fingertips, ठीक है. First of all, if a tumor is proximal to a gland, ठीक है. Let's say a tumor is distal to a gland. Third is, let's say it is a glandular tumor. Okay, tumor is on the gland. इसमें हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं? इसमें हमारे पास फर्दर एक प्राइमरी टाइप होती है और एक हमारे पास सेकेंडरी टाइप होती है. And we'll talk about both of these types. So we will be doing a total of 4 different types with you guys, okay? So it's going to be pretty simple. Safe conceptual चीज़ है ये, and it's pretty important for you to know. So proximal to a gland का क्या मतलब है कि guys, and also just a small disclaimer here because this video is going to go on YouTube, and all of you are going to be studying medicine next year. This is very basic और क्या कहते हैं वाटर्ड डाउन स्टाफ, ठीक है. आप अगले साल वाटर्ड डाउन. So next year when you guys start medicine around this time you will be doing your inflammation and neoplasia का module. तो उस टाइम पे जाके you'll be like ओ दावर ने तो इतनी कम डिटेल में पढ़ाया था, you know, maybe that wasn't correct. This is all correct but it's in the same way how तुम लोगों को हम लोग O level bio में जिस तरह O level chemistry में जिस तरह कहते हैं ना कि अच्छा ऐसे होता है, but we also tell you, you know, in reality it's much more complex. This is the same thing कि in reality proximal to gland में इतनी डिफरेंट आ जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्यूमर इट इज़. डिस्टल टू ग्लैंड में इतनी आ जाती हैं, ठीक है. प्राइमरी सेकेंडरी ग्लैंडुलर ट्यूमर्स में देयर इज सो मच डिटेल इन दिस. लाइक this is something that could easily be like a 2-hour class. So now I know आपका एग्जाम 5-6 दिन में, तो मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट बात है सिर्फ वो करवा रहा हूँ, ठीक है. सो ओके let's get started guys. Let's say there's a tumor that's proximal to the gland. proximal to the gland का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि let's say यहाँ पे ट्यूमर बन गया, ठीक है, इधर बनता जा रहा है ट्यूमर, ठीक है. सो ये जो हमारे पास ब्लड वेसल्स आ रहे थे अब वो इस तरह करके कंप्रेस होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द ट्यूमर. ऑल ऑफ द you know blood that was going that was getting reduced now. So what will happen to the gland, ठीक है. So guys यहाँ पे पहला केस अगर हम देखें proximal to gland, first of all होगा क्या? Gland's activity will be reduced. एंड जो ग्लैंड होता है ना वो एक डायनामिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. उसको पानी वगैरह उसको ब्लड न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस इन साइज, ठीक है. इट माइट रिड्यूस अ बिट इन साइज. ऑलराइट, अच्छा क्यों, वाई, ठीक है. वी ट्राई टू डू थिंग्स इन अ वेरी कंसेप्चुअल वे. तो वाई डज दिस हैपन गाइज? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन और वो ऑब्स्ट्रक्शन आपके ब्लड फ्लो को रिड्यूस करवा रही है. ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो जिसकी वजह से आपके पास ब्लड फ्लो जा ही कम रहा है. जस्ट वन थिंग दैट आई वांट टू क्लियर, इतना ये बंद नहीं हुआ हुआ. अगर ये बंद हो जाता तो हाँ फिर तो ऑल ऑफ दिस वुड डाई. जो इस ब्लॉकेज के डाउन स्ट्रीम सब कुछ होता दैट वुड ऑल डाई लिटरली. ये भी बंद नहीं हुआ,
ये कम हो गया है, ठीक है। ऐसी बात है, let's say you normally drink 10 liters of water, ठीक है, now you're only getting 2 liters of water a day. You're not dying, but at the same time you're not doing the best either. All right, so that is the case with this gland. And also just by the way, this is the gland, ठीक है। ये मैंने सिर्फ क्योंकि कैपिलरीज समझाने के लिए दिखाया हुआ था कि ये आर्टीरियोल आ रहा है, कैपिलरी में डिवाइड होके फिर वेन्यूल में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो, ठीक है। सेकेंड, जो हमारा ट्यूमर है ना, जो कैंसर इज स्टीलिंग न्यूट्रिएंट्स, तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो चोरी होते जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू गेट स्टोलन, दे आर ऑल गेटिंग स्टोलन। वाई? बिकॉज गाइज बेसिकली जब कहीं पर ट्यूमर ग्रो करता है ना, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में समझा देता हूँ। इट रिलीजेज basically releases angiogenesis के factors. Angiogenesis के factors क्या होते हैं? They're basically certain factors जो कि आपके पास angiogenesis यानी कि न्यू ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स करवा देते हैं। तो इसके ऊपर ऐसे करके न्यू ब्लड वेसल्स ग्रो कर जाएंगे, और वो न्यू ब्लड वेसल्स यहाँ से सारा ब्लड लेके ट्यूमर को ब्लड दे रहे होंगे, और ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, सब कुछ को खींचना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाई proximal to the gland the activity, if there is a tumor proximal to the gland की activity कम हो जाती है, ठीक है, because obstruction in blood flow हुआ हुआ, cancer is stealing nutrients from it, ठीक है। So simple, right? Okay, now let's talk about what if there is a, sorry, just a second, if there is a tumor distal to gland, okay, यहाँ पे मैं एक छोटा सा नोट लिख दूँ, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ग्लैंड, ठीक है। कुछ ग्लैंड्स का डिफरेंट सीन होता है, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज द बेसिक रूल ऑफ इट, एंड आई थिंक यू गाइज हैव दिस मच ब्रेन कि यू कैन अप्लाई दैट टू डिफरेंट थिंग्स। डिस्टल टू द ग्लैंड का क्या मतलब है? सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इज प्रॉक्सिमल। अब लेट्स से प्रॉक्सिमल टू द ग्लैंड ट्यूमर था ही नहीं, लेट्स से ग्लैंड से आगे था एक ट्यूमर विच इज सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, लेट्स से, ठीक है, एंड इट वाज प्रेसिंग दिस एंड लाइक दिस। गाइस अब क्या होगा? अब इसके पास न्यूट्रिएंट्स तो सारे सही आ रहे हैं, लेट्स अज्यूम दिस इज साफ, ओके, दिस इज साफ, न्यूट्रिएंट्स तो सारे आ रहे हैं, ब्लड तो आ रहा है, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे ट्यूमर है तो यार इसकी ड्रेनेज कम हो गई है, ठीक है। सो देयर इज बैक ट्रैकिंग ऑफ प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ दैट बैक ट्रैकिंग ऑफ प्रेशर व्हाट हैपेंस इज आपका ग्लैंड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज एसेंशियली जिसको समझ आ जाए ग्रेट, जिसको नहीं समझ आए यू कैन लीव दैट, ठीक है। होता ही है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ फ्लूइड दैट्स अलाउड टू लीव हियर, ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, सो देयर इज मोर फ्लूइड दैट इज एग्जिटिंग, इट्स बेसिकली बीइंग पुश्ड आउट ऑफ दिस कैपिलरीज, सो दिस ग्लैंड इट सॉर्ट ऑफ enlarges. It's not a true enlargement, because हम ये नहीं कहेंगे कि ग्लैंड का साइज बढ़ा हुआ है, ग्लैंड के सेल्स नहीं बड़े होंगे, इट्स जस्ट कि यहाँ पे पानी ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ व्हाट हैपेंस। सो गाइस डिस्टल टू द ग्लैंड हमारे पास क्या होगा? हमारे पास उसकी ड्रेनेज, उसकी सिक्रीशंस भी सही होंगी, उसकी सिक्रीशंस तक सही होंगी, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है, सिक्रीशंस वोंट बी एबल टू गेट टू द बॉडी दैट वेल, मतलब ग्लैंड अपना काम सही कर रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्यूमर है तो वो उतनी अच्छी तरह से जा नहीं पा रहा, ठीक है। ओके, सो सिक्रीशंस आर नॉर्मल, बट वी विल से कि देयर इज स्लाइट हाइपरट्रोफी, कुछ में ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी में स्लाइट होती है, स्लाइट हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का क्या मतलब होता है? बड़ा हो गया ग्लैंड, ठीक है। वाई? बिकॉज डाउनस्ट्रीम फ्रॉम ग्लैंड, डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब? डिस्टल, डाउनस्ट्रीम फ्रॉम ग्लैंड वी हैव a tumor blocking pathway, blocking drainage of blood, and because of this thing हमारा increase in hydrostatic pressure, increase in hydrostatic pressure, ठीक है, in the tumor, in gland, जिसकी वजह से more fluid exits, the hydrostatic pressure pushes the fluid out, more fluid exits, and because more fluid is exiting, we are now going to be having
फ्लूइड की एक्यूमुलेशन, और वो एक्यूमुलेशन आपके ग्लैंड को बड़ा सा कर देती है थोड़ा सा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। बट अगेन सो स्टूडेंट्स हु बीन विद मी इन द क्लास, मैंने आप लोगों को एक ग्लैंड करवाया था, जो कि ग्लैंड था उसके साथ एक डक्ट लगा हुआ था, ठीक है। कि सोचो ये ग्लैंड है, इसके साथ एक डक्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि भाई अब क्या होगा, इस चीज़ में हाइपरट्रॉफी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, डक्ट से बाहर निकलता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गाइस प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन, प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन, एंड दैट्स ऑनेस्टली ऑल दैट आई कैन टेल यू गाइस, ठीक है। इस तरह का अगर ग्लैंड हो, आई जस्ट रिपीट माई सेल्फ, जस्ट यूज़ योर ब्रेन। इफ लेट्स से दिस इज अ ग्लैंड विद अ डक्ट, ठीक है, डक्ट वाला ग्लैंड है, तो इन दैट केस गाइस ऐसे करके अगर डक्ट निकला हुआ है, इवन इफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इंक्रीज्ड, उसको फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक प्रेशर को निकालने के लिए एक वॉल्व बना हुआ है, ठीक है। सो खैर दैट्स ऑल फॉर दीज टू टाइप्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप, विच इज़ बेसिकली कि अगर हमारे पास लेट्स से एक ग्लैंडुलर ट्यूमर हो, कि ट्यूमर ग्लैंड का ही ट्यूमर हो, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी का क्या मतलब है? प्राइमरी का मतलब है कि इसका ओरिजिन वॉज ग्लैंड, कि लेट्स से जी मैं गया हूँ, मैंने लेट्स से कि यू नो आई हैव बीन स्लीपिंग विद अ रेडियो एक्टिव रॉक अंडर माई पिलो फॉर 10 years। रेडियो एक्टिव पत्थर उठा लिया था मैंने, ठीक है। इट ग्लोड इन द डार्क, सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड दिस इज सो कूल। आई प्लेस्ड इट अंडर माई पिलो एंड आई स्लेप्ट ऑन इट फॉर लाइक 10-15 years। अब लेट्स से कि मैं करवट लेके सो रहा था, जो मेरा पैरोटिड ग्लैंड था, जो कि मेरे कान से आगे होता है मेरे मुंह के ऊपर, ठीक है। मेरे पैरोटिड ग्लैंड को इट वाज डायरेक्टली, द रेडिएशन वाज डायरेक्टली अफेक्टिंग दैट। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड वाज दैट दिस वाज माय पैरोटिड ग्लैंड। अब इस ग्लैंड में क्या होगा, इस ग्लैंड के अंदर आई एम गोइंग टू बी गेटिंग, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस इज द डिस्टल फॉर्म। इस ग्लैंड के अंदर ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाएंगे। वो ट्यूमर का जो सेल टाइप होगी, वो टाइप इज गोइंग टू बी, दैट टाइप इज गोइंग टू बी इसी सेल की, ठीक है। मतलब ये यही सेल्स और बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह करके बल्कि आई थिंक आई शुड मेक देम अ बिट अग्लियर बिकॉज दीज सेल्स वोंट बी प्रॉपर, ठीक है। ये इस तरह के टूटे बच्चे से सेल्स हो गए। अच्छा, अब गाइस एक तो ये ऑप्शन आ गई, ठीक है, कि ओरिजिन वाज ग्लैंड। इसमें क्या हो सकता है? इसमें वी कैन हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज कि ग्लैंड की जो सिक्रीशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वी हैव टू मनी सिक्रीशंस। व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज गाइस ये जो कैंसर है ना, इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन ही ग्लैंड, इट्स अ प्राइमरी ट्यूमर, ठीक है। तो ये जो सारे आप सेल्स देख रहे हो, ये इसी बेसिकली ग्लैंड बड़ा हो गया, सीधी सी बात है। हाँ, कैंसर के सेल्स हैं, बट ग्लैंड टेक्निकली बस बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे भी जो सिक्रीशंस कर रहे होंगे, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट वुड बी कि आपकी सिक्रीशंस से 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। एंड दैट वुड लीड टू अ हार्मोनल इम्बैलेंस ऑफ पीपल। द वे इट्स डायग्नोज, द वे कैंसर इज डायग्नोज इस तरह से, ठीक है, कि लोग आते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, रिपोर्ट्स कराएंगे जी एक हार्मोन बहुत ऊंचा आ रहा है, वो उस ग्लैंड की इमेजिंग करवाएंगे, पता चलेगा उस ग्लैंड में तो ट्यूमर बैठा हुआ है, ठीक है। वो ट्यूमर इतना बड़ा है कि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, ठीक है। देयर इज ऑल्सो सेकेंड ऑप्शन कि देर आर रिड्यूस्ड सिक्रीशंस। देखो, इट कैन बी आइदर वन ऑफ दीज, ठीक है। अब आप आगे जाके पढ़ोगे कि कौन सा कौन सी म्यूटेशन हो जो एग्रेसिव होती है, वो ये करवाती है। इस लेवल पे ऑल यू नीड टू नो, इसके सिक्रीशन ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिक्रीशन कम्प्लीटली कम भी हो सकती हैं। कम कैसे हो सकती हैं? लेट्स से ये जो सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दी सेल्स बाय द वे आर आइडेंटिकल। ये जो ब्लू सेल्स है सारे आइडेंटिकल है, बिकॉज कैंसर सेल्स आर टेक्निकली ऑल आइडेंटिकल, ठीक है। सो बिकॉज माइटोसिस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। एनीवेज, अब लेट्स से जो सारे सेल्स हैं, दे आर नॉट, लेट्स से में जो सिक्रीशन वाले एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो एक्टिवेट ही नहीं हुए हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास चाहे हम करवाना चाहें, चाहे हम करवाना ना चाहें, ये प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, ठीक है। एंड बिकॉज दे नॉट प्रोड्यूसिंग एंड दे ग्रोइंग, तो ये बाकियों को भी नहीं प्रोड्यूस करने देंगे, ये बाकियों को भी नहीं प्रोड्यूस करने देंगे। देखो, ये सारे ग्रो किए जा रहे हैं, हार्मोन नहीं बना रहे, बिकॉज दे ग्रोइंग सो फास्ट। ये इन सबसे ना चीज़ें लेना शुरू करती हैं, इन बाकी सबसे न्यूट्रिएंट स्टील करके खुद यूज़ करना शुरू करती हैं। तो मैंने जो स्क्रीन पे बात रखी है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, रिपीट इट वंस, ठीक है, गो बैक, दोबारा सुनने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट को प्लीज़ समझ लो,
और इस चीज़ को याद कर लोगे तो इनको आइदर वेज दोनों तरीक़ों में जा सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन स्टेम में वो यूजुअली आपको स्पेसिफाई कर देते हैं। सेकेंडरी ट्यूमर में गाइस क्या होता है? सेकेंडरी ट्यूमर के अंदर आपके पास सिक्रीशंस ऑलवेज गेट रिड्यूस्ड, सिक्रीशंस हमेशा कम हो जाती है, ठीक है। एट योर लेवल सिक्रीशंस हमेशा कम हो जाती है, ठीक है। क्या हुआ है? लेट्स से कि जी पैरोटिड ग्लैंड है, राइट। लेट्स से कि मेरे पास कोई ट्यूमर था मेरे हार्ट का, और वो होता होता चलते चलाते मेरे क्या कहते हैं कॉमन कैरोटिड से फिर एक्सटर्नल कैरोटिड से होते होते वो मेरे पैरोटिड ग्लैंड में पहुंच गया। अब पैरोटिड ग्लैंड में एक सेकेंडरी ट्यूमर का मतलब क्या होता है कि इसका ऑरिजिन वॉज समप्लेस एल्स, ऑरिजिन वॉज सम अदर प्लेस, कि कहीं से वो चलता चलाता आया है, और लेट्स से इट गॉट लॉज्ड हेयर, यहाँ पे आकर लटक गया, और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे उसने एक ट्यूमर सा बनाना शुरू कर दिया। गाइज इन दिस केस सिक्रीशंस कम ही होती है। क्यों होंगी सिक्रीशंस सिर्फ कम? बिकॉज हमारे पास ये जो सेल्स हैं दे आर नॉट ऑफ दिस ग्लैंड, इस ग्लैंड के है ही नहीं, ठीक है। तो इनका काम ही नहीं, इनका लेना देना ही नहीं है इस ग्लैंड के काम से, ठीक है। इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बस यहाँ ऐसी बात है, एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ना आप कल उठे हो हॉस्पिटल में जी लॉयर्स जाके बैठना शुरू हो गए कि लेट्स से एवरी आवर 200 मोर लॉयर्स आर कमिंग इन। अब वो सही होंगे यार, लॉयर्स हैं, कोई बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन अगेन इट्स नॉट देयर प्लेस, वो वहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो सिमिलरली ये कैंसर के सेल्स आए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे वहाँ पे बैठ के। तो ये जो जगह है इनकी जगह, इन यहाँ पे काम नहीं कर सकते, दे नॉट स्पेशलाइज टू डू द वर्क हेयर, ठीक है, दे नॉट डिफरेंशिएटेड टू डू दिस वर्क, ठीक है। सो वो यहाँ पे बैठे हुए डिवाइड करते जा रहे हैं। द सेम लॉयर एग्जाम्पल के लॉयर्स हैं, हॉस्पिटल में बढ़ते जा रहे हैं, काम कर नहीं रहे, ठीक है। और कर क्या रहे हैं कि जो डॉक्टर्स की जगह है उसको ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, और जो डॉक्टर्स का खाना है उसको खाते जा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस ओवर हियर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी सिक्रीशंस गिर जाती है। सो गाइज दैट इज़ व्हाट वी हैव। अगर ये चीज़ अभी तक भी नहीं समझ आई, प्लीज़ रिकैप, दोबारा जाओ और इसको समझो। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बस रट्टा नहीं मारना। एंड इफ आई वाज टू गिव यू गाइस अ क्विक रिविजन, ठीक है, हमारे पास प्रॉक्सिमल टू द ग्लैंड अगर यहाँ पे ट्यूमर आ जाए, तो क्योंकि ये सारा कुछ ट्यूमर का खाना शुरू कर देगा, तो हमारे पास जो ये ट्यूमर ग्लैंड का सब कुछ खाना शुरू कर देगा, ब्लड सप्लाई को कम करवा देगा, तो हमारे पास रिडक्शन हो जाएगी साइज़ के अंदर, ठीक है। जो ग्लैंड होगा उसकी एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी, उसका साइज भी छोटा सा हो जाएगा, इट वॉन्ट बी एबल टू वर्क दैट वेल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर डिस्टल टू द ग्लैंड आ जाए, अब क्या होगा गाइस कि अब हमारे पास सिक्रीशन सही है, मतलब ग्लैंड काम टेक्निकली ग्लैंड सही कर रहा है, और ग्लैंड थोड़ा सा बड़ा हो गया। बड़ा कैसे हुआ? इसके सेल्स नहीं बड़े हुए, ठीक है। द नंबर ऑफ सेल्स हैवंट इंक्रीज, द साइज ऑफ द सेल्स थोड़ा थोड़ा वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब लिक्विड ज़्यादा आ रहा है और सेल्स उस लिक्विड को अपटेक करके थोड़े थोड़े बड़े हो गए, ठीक है। लेकिन द नंबर ऑफ सेल्स हैव नॉट इंक्रीज, ठीक है। सो डाउनस्ट्रीम फ्रॉम ग्लैंड वी हैव अ ट्यूमर, ब्लड ड्रेनेज खराब हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास अब ट्यूमर लेट्स से ग्लैंड का हो जाए, ग्लैंडुलर ट्यूमर हो जाए, इसमें एक प्राइमरी है कि जिसका ऑरिजिन ही ये ग्लैंड है, ठीक है। ये सिक्रीशंस को ज़्यादा भी करवा सकता है, सिक्रीशंस को कम भी करवा सकता है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। आगे जाके यू गाइस विल हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स, ठीक है, कि कौन सा कैंसर करवा सकता है, कौन सा नहीं करवा सकता। जो सेकेंडरी होता है वो हमेशा कम करवा देता है सिक्रीशंस, ठीक है। सो दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर दिस एंटायर चैप्टर। नाउ वी आर डन विद द रैपिड रिव्यू ऑफ इन हॉर्मोन्स। बहुत लंबा रैपिड रिव्यू था, बट इट्स जस्ट कि दिस चैप्टर वाज super long, and I hope you guys had fun. I hope you guys were able to actually understand this. Again guys, insulin का सारा सिस्टम, हाउ डज इंसुलिन वर्क, ठीक है। एंड असाइड फ्रॉम दैट पिट्यूटरी का सारा, सेला टर्श का, ठीक है, द कैंसर फीडबैक सिस्टम, ऑक्सीटोसिन, पॉजिटिव फीडबैक, ADH वाली सारी चीज़, ठीक है। लाइक ये चैप्टर सारा ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, every single one of these things should be on your fingertips, ठीक है। So that's it for this video. Hope to see you all in the future videos, and Allah Hafiz.